चलो ओके ओके। नेक्स्ट क्या है? फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। तो अभी हम फोर्स ऑसिलेशन पे आ गए। तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी थियरी नोट करो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जब कोई चीज़ एग्जाम में आने लग जाए तो उसको जो है अच्छे से आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जो है लिखो, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स, क्या नोट डाउन किया था? व्हेन अ सिस्टम is displaced from its equilibrium position and released. When a system displaced from its equilibrium position and released, it oscillates with its natural frequency omega. It oscillates with its natural frequency omega, and the oscillations are called free oscillations. And the oscillations are called free oscillations. ये हम जानते हैं। And the oscillations are called free oscillation. And the oscillations are called free oscillations. Okay? All free oscillations eventually dies out because of your present damping force. All free oscillations eventually die out because of the ever present damping forces. Ever present damping forces. Damping forces. However, an external agency can maintain these oscillations. However, an external agency can maintain this oscillation. These oscillations, these are called force or driven oscillations. These are called force or driven oscillations. Let us consider the external force is itself periodic. Let us consider an external force is itself periodic. With a frequency omega d. With a frequency omega d ऐसे, with a frequency omega d suffix में, omega d मतलब driven frequency, ठीक है ना? With a frequency omega d, called the driven frequency. Okay, paragraph change. Let us suppose an external force Ft. Let us suppose an external force Ft, capital F, capital F is the function of time, है ना? Let us consider an external force Ft, क्या लिखा? Ft, an external force Ft of amplitude f naught that varies periodically with time is applied to damped oscillator. मतलब किस पर अप्लाई किया गया है? डैम्प पर। मतलब समझे क्या? सीरीज समझो। पहले फ्री ऑसिलेशन हो रहा था, फिर उसके बाद वहाँ डेंस गैस बहुत ज़्यादा डेंस हो गई,
मतलब बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल हो गए तो कोलिजन होने लगा, जिससे क्या होने लगी, डैम्पिंग होने लगा, है ना, धीरे 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 उसका मोशन क्या होना, डाइज आउट होने लगा, ओके, डाई आउट होने लगा। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जिसको हमने क्या बोला, फोर्स ऑसिलेशन। अब उसका जो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डाइज आउट हो गया था, अब वही क्या होने लगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, है ना। तो देखो उसी टर्म में लिखा गया है जो है। तो क्या लिखता है कि विथ क्या लिखा, एफ नॉट दैट वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम इज अप्लाइड टू अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, is applied to a damped oscillator. Such a force can be represented as Ft equals to F naught cos omega d into T. ठीक है ना। This is your equation number 1 for this topic. ये हमारा equation number 1 हो गया, क्लियर हो रहा है आपको कि ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है। Since the motion of particle under combined action of linear restoring force, since the motion of particle under combined action of a linear restoring force, comma, damping force and a time dependent driven force represented as, and a time dependent driving force represented as, कैसे, मतलब कि F net इज इक्वल्स टू क्या क्या हो गया, मतलब माइनस के एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस क्या, ये डैम्प्ड वाला बी वी विद आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, और एक फोर्स, सुन लो, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये अप्लाई किया गया है, ये अपोज नहीं कर रहा है, हम उसका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लस एफ नॉट, ये वाला एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी, ओके, बात बन गई। अच्छा, अब हम आप जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेट फोर्स m इंटू ए एट एनी टाइम t इक्वल्स टू माइनस के एक्स at any time t minus v into at any time t plus f naught cos omega d into t, और m into d2 x at any time t by dt plus क्या कर लें, जैसे कि आपने डैम्प वाला लिखा था, क्या हो जाएगा, b into dx at any time t by dt plus k x at any time t is equals to f naught cos omega d into t, ये हो गया। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये है डैम्प का इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट तो ले लिया था वहाँ पे, इसके बाद वो उसी सीरीज में हमने आगे बढ़े, जो था उसमें हमने प्लस कर दिया, ठीक है, और ये हो गया। तो देखो अब आप लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हेंस नाउ द सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन इज गिवन बाय, नाउ द सोल्यूशन ऑफ अब इक्वेशन आप जो लिख रहे हैं, अब इक्वेशन इज गिवन बाय, नोट डाउन करो रेखा फटाफट, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होगा, एक्स टी इक्वल्स टू, याद है ना तुम लोगों को, एक्स टी एक्स एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये इसका सोल्यूशन हो गया। where t is the time measured from the moment when we applied the periodic force, t वो समय है जिस समय हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया था, ओके। अब आप लिखेंगे where
वेयर ए इज इक्वल्स टू, मतलब एम्पलीट्यूड कैसे आता है इसका एम्पलीट्यूड जो आपने ऐसा जनरली ये लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है, वेयर ए इज इक्वल्स टू एफ नॉट ऑल बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पावर 1/2 होल पावर 1/2 एंड tan phi की वैल्यू कितनी, tan phi इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा डी इंटू एक्स नॉट। ठीक है, ये 1 ये 2 ये वाली 3 ये इक्वेशन 4 और ये सभी आपके लिए यूजफुल हैं पांचों। ठीक है, अब आप लिखेंगे देयर आर सम केसेस मे बी अराइजेस, देयर आर सम केसेस कैन बी अराइजेस। ओके, केस फर्स्ट, अच्छा आप एक काम करोगे क्या, ये लिखोगे वेयर, ये लिख दिया केस, ये जो x नॉट और जो v नॉट है ये t इक्वल्स टू 0 पर है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये उसका वेलोसिटी किस पर है, t इक्वल्स टू 0 पर है। मतलब ऐसा लिखना वेयर v नॉट एंड x नॉट इज एट t इक्वल्स टू 0 पर। बस ये जानने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो न्यूमेरिकल इजीली कैसे सॉल्व होता है जो है। ठीक है, ओके, चलो फटाफट नोट डाउन करो कि मतलब t इक्वल्स 0 क्या है, विच इज द मोमेंट एट विच वी अप्लाई ए पीरियोडिक फोर्स। इसी समय तो हमने पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया था, यही वो टाइम है। ठीक है, चलो अच्छा, फर्स्ट केस फर्स्ट स्मॉल डैम्पिंग। केस फर्स्ट क्या कहता है कि स्मॉल डैम्पिंग, केस फर्स्ट स्मॉल डैम्पिंग, स्मॉल डैम्पिंग, केस फर्स्ट स्मॉल डैम्पिंग। स्मॉल डैम्पिंग, स्मॉल डैम्पिंग का मतलब, स्मॉल डैम्पिंग मीन्स, आगे बता दो, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन करो, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आपको स्मॉल डैम्पिंग चाहिए, इसका मतलब कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है, बहुत दूर, मतलब बहुत अलग है, डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कह रहा है कि आगे आप नोट डाउन करें, इन दिस केस ओमेगा डी इंटू बी विल बी मच स्मॉलर दैन, इन दिस केस ओमेगा डी इंटू बी much smaller than, will be much smaller than किससे, m into ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, and we can neglect that term, hence equation किससे, हाँ, hence from equation 4, hence equation 4 can be written as, hence equation 4, अपना equation 4 can be written as क्या, a is equals to
हमने क्या किया, उसी टर्म को ही निगलेक्ट कर दिया। किसको? ये इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर जब ओमेगा डी इंटू बी इज लेस देन दिस वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये टर्म ही निगलेक्ट हो गया। तो ए इज बस टू एफ नॉट बाई क्या हो गया, एम इंटू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। याद है ना भाई, जब ये चीज स्क्वायर नहीं है फिर भी बहुत छोटी है, तो इसका मतलब क्या कि अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। ओके, चलो इसमें लिखो नोट। It may be noted that in all the cases, note लिखो, in all the cases, it may be noted that in all the cases, the amplitude is greatest when omega d by omega is equals to 1. The amplitude is greatest when omega d by omega is equals to 1. इसका मतलब क्या कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और वो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो क्या हो गया 1। उस समय वो तो पहला टाइम होता है जब डैम्पिंग होने के पहले, उसी समय उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और फोर्स में तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब जाकर के वहाँ हाईएस्ट दिखाता है जो है। लेकिन ये मतलब इसका मतलब ये तब हो सकता है जब वो हम उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तभी ये ऐसा हो सकता है। उस समय उसका एम्पलीट्यूड वही मैक्सिमम उसके नेचुरल के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकेंड। आज नहीं बात समझ में आया ना, सिंपल है ये तो। जो डैम का पहला एम्पलीट्यूड होगा वो फोर्स वाले का क्या होगा, एक तरीके से हम उसके जब इक्वल कर पाएं, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाने की, हम उसके इक्वल करेंगे, जो क्या होगा मतलब मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो जो हमारे लिए उसका लास्ट है वो उसका क्या है, फर्स्ट है। और ये तब होगा जब क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाए, तभी तो क्या आएगा 1। ठीक है, कौन किसका, ये फोर्स का। अरे किसी की कोई लिमिट होती है कि नहीं? जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो इन्फिनिटी कैसे करा सकते हो, प्रैक्टिकल होके सोचो। इन्फिनिटी कराओ, पता चला कि तब तो स्प्रिंग ही टूट गई जो है। अच्छा ये इसके बारे में कह रहे हो तुम लोग, मतलब ओमेगा डी, मतलब हमने क्या लिया, ओमेगा कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसमें लिमिट वाला लॉ लगेगा, ऐसे थोड़ी जीरो डाल देगी फट से जो है, उसके बाद लिमिट वाला लॉ लगता है। कभी हमेशा याद रखना ये हाई मैथमेटिक्स है। उसके बाद उसमें जो जैसे आप लोग फंक्शन नहीं पढ़ते कि जहाँ पर वैसे देखो तो एच की एच स्टैंडिंग लिमिट, एच स्टैंडिंग टू 0, एच की वैल्यू रखते ही वो दिखाता क्या है कि वो तो इन्फिनिटी बता रहा है। इसका मतलब क्या, उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है नहीं ना, उसको हम सॉल्व करते हैं जो। ठीक है, तो ऐसा है जो है। अभी धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे अच्छे जो एडवांस के न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारा पाला पड़ेगा, तब तुम्हें ऐसा फील होगा कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है जो है। तो नेक्स्ट हाँ क्या है, ये एक एजम्पशन है। देखो इधर क्या कर रहा है कि इफ यू गो टू चेंजिंग द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन इट इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट दिस इज द आइडियल केस ऑफ जीरो डैम्पिंग। आइडियल केस, लेकिन ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट दिस इज द आइडियल केस ऑफ जीरो डैम्पिंग इन केस विच नेवर raises in the real system as the damping is never perfectly zero। अब समझ में आया क्या, हो ही नहीं सकता है ना। और मेरे समझ में एक बात आ रही है कि जो तुम लोग सोच रहे हो कि ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी सेंस व्हाट,
उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वो जब मैक्सिमा था वो मैक्सिमा दिखाएगा। यहाँ इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग ही जो है पूरा 200-500 किलोमीटर तक खींचेगा और फिर वापस आएगा और ऐसा ऐसा दिखाएगा, ऐसा थोड़ी होने वाला है। जो है कहने का मतलब कि उसकी जो जीरो डैम्पिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसके बराबर होगा, है ना। डायरेक्ट बात करोगे तो मेरे ध्यान में यही आएगा कि मैक्सिमम क्या होगा, है ना। तो देखो सेकेंड केस, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सेकेंड, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सेकेंड, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सेकेंड, ड्राइविंग केस सेकेंड, लो सेकेंड, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हेडिंग है। आगे लिखो, इफ ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा, इफ ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा मीन्स क्या हो जाएगा ये, m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर वुड बी मच लेस देन क्या, ओमेगा डी इंटू बी। अगर तुम सोचो, अगर ये दोनों क्या हो जाएं, एकदम क्लोज हो जाएं या इक्वल हो जाएं, इक्वल हो गए तब तो जीरो हो गया, और अगर वेरी क्लोज भी हो गए तब भी इनकी वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, लेस देन इतना, फॉर एनी रीजनेबल वैल्यू ऑफ बी, फॉर एनी रीजनेबल वैल्यू ऑफ बी, हेंस इक्वेशन 4 कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या रिटन एज भाई, देखो ये वाला टर्म क्या हो गया पूरा जीरो, देयरफॉर a इक्वल्स टू f नॉट बाई, ये फर्स्ट टर्म क्या कर दो जीरो, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी इंटू बी, ओमेगा डी इंटू बी, a इक्वल्स टू f नॉट बाई ओमेगा डी इंटू बी। This makes it is clear that the maximum possible amplitude for given driven frequency is governed by the driving frequency and the damping, and is never infinity. The phenomenon increases in amplitude when the driving frequency is close to natural frequency of the oscillator, is called resonance. तो note down करो, this makes it is clear that the maximum possible amplitude, this makes it is clear that the maximum possible amplitude for a given driving frequency, is governed by, given driving frequency is governed by driving frequency and the damping, driving frequency and the damping, comma, and is never infinity, and is never infinity. The phenomenon of increase in amplitude, the phenomenon of increase in amplitude when the driving force is close to natural frequency of the oscillator is called resonance, is called resonance. ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को? ओके, क्लियर? आप चाहो तो देखो टाइम बचा है, एक मिनट, हाँ 6 मिनट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14.24, क्वेश्चन नंबर 14.24, अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग फटाफट कर लेते हैं जो है, ठीक है।
तो देखो पहला धावा मैंने इसी पे बोल दिया, किस पर, 14.24 पर, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा ये है जो थियरी में आया नहीं जो है ना। तो देखो कह रहा है बॉडी डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 5 सेंटीमीटर and a period of 0.2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना प्रथमेश समझ में आ रहा है क्या? 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जरूरत पड़े तो कितना लूंगा, 0.05 मीटर एंड अच्छा एम्पलीट्यूड हो गया, एंड टाइम पीरियड इज वाह टी इक्वल्स 0.2 सेकेंड, बराबर है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इतना, मतलब कह रहा है कि आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब एक पहला 5 सेंटीमीटर पर, बी 3 सेंटीमीटर पर, और सी वाली कितनी 0 सेंटीमीटर। बहुत सरल सवाल है ये, देखो फटाफट। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं, पहला वाला सोल्यूशन में देखो फटाफट। सोल्यूशन ये कहती है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो देखो यही तो x मतलब क्या, जिस पोजीशन पर है, पोजीशन a इक्वल्स टू, देखो ये ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया, अरे भाई ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। अभी देखो ए और ए इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर 9.8, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस के साथ 9.8 बाई टी स्क्वायर मतलब 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी, जब वो 5 सेंटीमीटर पर है, मतलब क्या कर दो 0.05। अभी देख लो 0.05 से ये चला गया, मतलब ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाए, 4 कैंसल, माइनस 9.8 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? मल्टीप्लाई मारो 5 कितना होगा, 49 कितना, माइनस 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उस समय इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और उसी समय वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी v इक्वल्स टू ए ओमेगा, अब क्या तुम कॉस ओमेगा रखोगे, इसके दो फॉर्मेट, इसलिए मैंने तुम्हें बताया जो है, इसके दो फॉर्मेट होते हैं। आ जाओ पहले उसको कर लेते हैं जो है, जैसे कि आपने जो सीखा है वो बताओ क्या है। x इक्वल्स टू ए ओमेगा क्या था, साइन ओमेगा टी, चलो फाई साइन ओमेगा टी था। अब अगर आपको ये पता है कि x इक्वल्स टू ए साइन कॉस ओमेगा टी होता है, तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू बोलो x बाई ए, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। अब ये यहाँ रख दो जरा सा, तो रखो, तो ये हो गया ए ओमेगा इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस, बोलो जल्दी, एक्स स्क्वायर बाई क्या, ए से ए कट गया, तो क्या आया तुम्हारे पास, v इक्वल्स टू ये इसका ये अलजेब्रिक फॉर्मेट है, हाँ, a इक्वल्स टू ओमेगा। अब भाई एनसीईआरटी ये सब थोड़ी पढ़ाते हो, कहते तुम्हें आता है, इतनी गणित तुम्हें आती है जो है, ए ओमेगा रूट ओवर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब अगर मैं कहूं कि जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि v max कब होता है, एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज मिनिमा एट मीन वेलोसिटी इज मैक्सिमा, तो मीन पर x इक्वल्स टू 0 धर दो, 0 क्या आया, ए ओमेगा। और अगर इस इक्वेशन से जानना चाहते हो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तब भी क्या आया, ए ओमेगा वी मैक्स इक्वल्स टू।
अच्छा, अब हमें जनरल फार्मूला मिल गया, v इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इधर कर दूं क्या मैं? अब देखो जरा सा, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी v इक्वल्स टू, अरे ओमेगा बोलो मत यार, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर कौन सा, अच्छा ए, पहले ये तो रख दो, ए की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब कि जो भी है 0.05 का होल स्क्वायर